Good morning to all. Today we will study about resources and development. So let's start the topic first. What is resources? So first we see the definition of resources. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological, accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be termed as resources. It means हमारे पर्यावरण में जो भी पदार्थ हमें मिल रहे हैं, जो भी वस्तुएं हमें मिल रही हैं, उनको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं और वो हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। वो सब वस्तुएं रिसोर्स कहलाती हैं। एक एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या है। रिसोर्स के लिए हम एग्जांपल लेंगे वाटर। सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। वाटर को एज अ रिसोर्स किस किस तरह से यूज़ किया जाता है? फर्स्ट, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, second in irrigation, third in potable water, etc. एज अ रिसोर्स वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं, इरिगेशन में भी यूज करते हैं और पोर्टेबल वाटर में भी यूज करते हैं। और ऐसी कई चीजें हैं जहाँ पर हम वाटर को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है और भी कई चीजें हैं। तो इस तरह से हम एज अ रिसोर्स वाटर को यूज करते हैं। बट इस प्रोसेस में, इस तरह से वाटर को एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है उसे हम देखेंगे। The process is interdependent relationship between nature, technology and institution. The first step of this process is first nature, second technology and third institution. These are the three steps of interdependent relationship between nature, technology and institution. Nature, technology and institutions, तीनों का यूज करके ही, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पूरा करके ही किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को एज अ रिसोर्स यूज किया जाता है। Human beings interact to the nature and use technology, then create institution. Human beings use nature, like example, we take an example like water. Human beings interact to nature and take water from nature and use technology. Use technology in industries, use technology in industries and create institution. इस तरह से किसी भी पदार्थ को नेचर से लिया जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और बाद में उसको एज ए इंस्टीट्यूशन यूज किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू ही हम किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को एनवायरनमेंट में से लेकर के एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। ये एक प्रोसेस है, interdependent relationship between nature, technology and institution. Now we take second topic of our chapter, that is types of resources. Second topic, types of resources. Types of resources can be divided into four parts: on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of status of development. These are the four types of the resources. First, we study about the basis of origin. On the basis of origin, also subdivided into two parts. Origin. First is biotic resources,
and second is abiotic resources. So let's see the definition of biotic resources and abiotic resources. First is biotic resources. All living things obtained by biosphere, that is called the biotic resources. All living things obtained in biosphere, that is called biotic resources. We take some examples of biotic resources. First, examples of biotic resources are flora and fauna, flora that is the plants, all plants, and fauna that is the all animals, all types of animals. Flora and fauna and fisheries and livestock. Livestock means all pet animals, cattle like cow, goat, buffalo, etc. and human beings. These are the examples of biotic resources. So, all living things obtained in biosphere, that is called biotic resources. Examples: flora, fauna, animals, plants, fisheries, livestock, human beings, etc. Now, we take the definition of abiotic resources. Second type of, on the basis of origin, is abiotic resources. Abiotic resources means all living things present in atmosphere or environment. So, definition of abiotic resources is all non-living things are called abiotic resources. That is the definition of abiotic resources, and examples are like rocks, metals, etc. So that is the biotic resources. All non-living things are present in environment, that is called abiotic resources. Rocks, metals, etc. These are the examples of abiotic resources. Now, second type of, on the basis of exhaustibility, we study about the second type of resources, that is on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility. एक्सॉस्टिबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो समाप्त होने वाले हैं उन्हें हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, दैट इज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज. Exhaust on the basis of exhaustibility are divided into two parts. One, renewable resources, and second is non-renewable resources. सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वर्ड से पता चल रहा है रिन्यूएबल, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता हो वो रिन्यूएबल होगा, और नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता. तो फर्स्ट वी कैन
see the definition of renewable resources. Renewable resources are the resources which can be renewed by physical, chemical and mechanical processes. That is called the renewable resources. Renewable resources are the resources which can be renewed by physical, chemical and mechanical processes. That is called renewable resources. Examples of renewable resources are wind energy and solar energy, etc. Wind energy, by wind we produce the energy and solar energy, सोलर के द्वारा हम एनर्जी को वापस से रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों एग्जांपल्स होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. नाउ सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Non-renewable resources are these occur over a very long geological time. These occur over a very long geological time. That is called non-renewable resources. These occur in very long जियोलॉजिकल टाइम. ऐसे रिसोर्सेज जो एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम में बनते हैं उन्हें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाएगा. एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल, coal, etc. That is the examples of non-renewable resources. So this is on the basis of exhaustibility there are two types of resources, renewable resources and non-renewable resources. That is two types on the basis of exhaustibility. Now second type on the basis of ownership. On the basis of ownership. On the basis of ownership can be divided into four parts. That is the subdivision of on the basis of ownership. First is individual resources. Second is community resources. Third is national resources. And last four is international resources. These are the four types of on the basis of ownership resources. First is individual resources, second is community resources, third is national resources and fourth is international resources. Now we see the definition of first individual resources. Individual resources. Individual means personal. That is the personal resources. Personal means
ये किसी एक व्यक्ति का होगा, उस रिसोर्स को इंडिविजुअल रिसोर्स कहा जाता है। पर्सनल रिसोर्सेस मीन्स पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेस। एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स मीन्स हाउसेस, प्लॉट, फार्मिंग लैंड, etc. These are the types of individual resources. That is the personal resources. This is owned by only one people, only one person. Example: houses, plot, farming land, etc. Now second is community resources. Second type of resource is community resources. Second, community resources. Community resources means these type of resources owned by community. Community means a group of persons, group of people. लोगों का एक समूह होगा, वो एक समूह जो है वो किसी रिसोर्स का मालिक होगा, उसे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है। उस पर अधिकार उस पूरे ग्रुप का होगा जो उसमें पार्टनर्स हैं, उसे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल, दैट इज some type of factories, schools, etc. फैक्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, और भी कई चीजें होती है जो कि सोसाइटी में जिन पर एक व्यक्ति का न हो करके किसी ग्रुप का या कुछ पार्टनर्स का जो है अधिकार होता है, उसे कम्युनिटी रिसोर्सेज कहा जाता है। इंडिविजुअल रिसोर्स के बाद कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। नाउ थर्ड we understand the national resource. नेशनल रिसोर्स को समझने के लिए हमें इंडिया का मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ इंडियन मैप, आउटलाइन मैप। This is the outline map of India. नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज मीन्स होता है कि वो रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टीज फॉर पब्लिक गुड्स। इस टाइप के रिसोर्सेज में सारा अधिकार किसी नेशन का होता है और सारे रिसोर्सेज पर अधिकार सिर्फ उसी कंट्री का होगा। बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पर जिस देश का अधिकार होगा उसको नेशनल रिसोर्स कहा जाता है। इंडिया के हिसाब से हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर जैसे रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, केनाल्स हैं, एक्सेट्रा, कई चीजें हैं पूरी बाउंड्री लाइन के अंदर। तो किसी भी नेशन के बाउंड्री लाइन के अंदर का जो रिसोर्स होगा और जिस पर सिर्फ उस देश का अधिकार होगा उसे नेशनल रिसोर्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। बाउंड्री लाइन में एक और चीज आती है, हमारे बाउंड्री लाइन के इस तरफ है अरेबियन सी एंड इधर है बे ऑफ बंगाल। ये कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया
जो सिर्फ हमारे देश के रिसोर्स के अंदर आएगा, और ओशनिक एरिया जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक का, वो भी हमारे देश का ही रिसोर्स कहलाएगा। वो ओशनिक रिसोर्स कहलाएगा, उस पर कंट्रोल, उस पर अधिकार सिर्फ हमारे देश का होगा, उसको भी नेशनल रिसोर्स कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, व्हाट इज नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो नॉटिकल माइल्स मीन्स a unit for measuring distance at sea. Nautical mile is a unit for measuring distance at sea. समुद्र की दूरी को नापने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसे नॉटिकल माइल्स कहा जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है वो भी किसी नेशन का रिसोर्स कहलाएगा, वो भी नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। दैट इज द नेशनल रिसोर्सेज। अब एक और फोर्थ जो है टाइप इंटरनेशनल रिसोर्सेज, उसको भी हम मैप के थ्रू समझेंगे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया तो नेशनल रिसोर्स होगा, और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा। वो कैसे? इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर इस ओशनिक रिसोर्स का अधिकार होता है, और उनकी परमिशन के थ्रू ही कोई भी किसी भी कंट्री का शिप या कोई भी कंट्री जो है इस एरिया पर अपना शिप ला सकता है या इस एरिया पर आ सकता है। बट उसके लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उससे परमिशन लेनी होती है, और इस एरिया को कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 1200 नॉटिकल माइल्स के बाद का 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। दिस इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। On the basis of ownership, there are 4 types of resources: individual, community, national और international resources. अब लास्ट है on the basis of status of development. Fourth and last, on the basis of status of development. On the basis of development, status of development जो रिसोर्स है वो भी 3 भागों में डिवाइड है। इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। First is potential resources. Second is developed resources. Third is stock. And fourth, stocks and reserves. These are the 3 types of resources on the basis of status of development. Fourth type है on the basis of status of development. 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे। फोर्थ टाइप में फर्स्ट है potential resources. Potential resources which are found in a region but have not been utilized. It means ये वो रिसोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर किसी रीजन में पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर अभी तक उनका किसी भी प्रकार से उपयोग या यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। इसके एग्जाम्पल जो है इसका वो है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे थार डेजर्ट है राजस्थान का, राजस्थान के थार डेजर्ट में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करने के कारण या उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इसी को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट डेवलप्ड रिसोर्सेज। सेकंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, नाम से पता चल रहा है कि जिनका डेवलपमेंट हो चुका है वो ऐसे रिसोर्स होंगे।
Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. It means ये वो resources हैं जिनका डेवलपमेंट हो चुका है और उनका सर्वे करके उनकी क्वालिटी को और उनकी क्वांटिटी को कि कैसी क्वालिटी है और कैसी क्वांटिटी है ये देखते हुए ये निर्धारित किया जाता है कि उसका यूज़ और उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज के बाद में आता है थर्ड नंबर स्टॉक्स। स्टॉक्स को देखने के लिए हम पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्टॉक्स थर्ड स्टॉक्स टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर द मटेरियल्स इन द environment which have the potential to satisfy human needs, but human being do not have the appropriate technology to access are including these amounts stocks. Stocks का मतलब है कि इसके लिए appropriate टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टॉक्स का यूज करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इसका यूज नहीं किया जा सकता। रिसोर्स तो है स्टॉक्स के रूप में, पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उसका सही तरीके से यूज नहीं किया जा सकता, उसको स्टॉक्स कहेंगे। स्टॉक्स का ही एक जो पार्ट है वो है रिजर्व। रिजर्व मीन्स द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। रिजर्व मीन्स सबसेट ऑफ स्टॉक्स। सबसेट ऑफ स्टॉक्स का मतलब है कि है तो स्टॉक्स के रूप में ही, बट इसको एज अ फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। इसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी तो है, इसका यूज करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, बट इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरह के रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व किए जाते हैं, इनको रिजर्व्स कहेंगे। दोनों को ही हम समझने के लिए एक कॉमन एग्जांपल लेंगे। वाटर एक ऐसी चीज है जो स्टॉक्स के रूप में भी है और रिजर्व्स के रूप में भी है। स्टॉक के रूप में कई जगह पर वाटर ऐसे अवेलेबल है कि उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उस जगह पर नहीं लग पाई है, और इसलिए स्टॉक्स के रूप में वाटर है, पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उसको हम यूज नहीं कर पाए। बट इसी को रिजर्व के रूप में लेंगे। रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक्स और इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज किया गया है। इसको रिजर्व करके रखा गया है, वाटर को रिजर्व करके रखा गया है डैम में। डैम के वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हम उससे कई प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन में उसको यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर में उसको यूज कर सकते हैं, बट उसका एक लिमिटेड एक्सटेंट में उसको यूज किया जाता है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए उसको रिजर्व किया जा सके। द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज द रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखा गया है, इसलिए उसको रिजर्व कहा जाता है। और स्टॉक उसको कहा जाता है जो रिसोर्स तो है पर उसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उसको यूज नहीं किया जा सकता। ये है स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। ये पूरे 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।